Penguin team showed off their skills with 22 kills in one round yesterday, worth 15 points apiece. Watch out for some aggressive play to rack up those scores. And not only that, the prize pool is $402,000 with the first place. Is taking home $200,000. From Turkey, Cairo. From Korea, AWCD. From Saudi Arabia, Arab Madness. From Russia, Big Russian Bot. From Kuwait, GT Gamers. One of our international teams, Team Galaxy. From the USA, Cloud9. From China, CPT. Another international team, Full Set. From China, GT Douyi. From the USA, Wildcard. From China, LH Douyi. From North America, Gangstars. And our final team from Japan, Team Japan. From Japan, Team Japan. That's right, all of our teams here looking to represent once again in day number 2. And let's talk about what happened in day 1, of course, because I went away, I divided up a lot of our teams into some categories. Teams that impressed, teams that we think can do better coming into day 2, and kind of teams middle of the pack. Obviously, they ran away with the show, our Chinese teams as well as our RRQ. Very impressive stuff from them to start off day 1. Indeed. I think the story of the first day was the performance from Asia in general, the Chinese teams as well as the Thai teams. RRQ Athena coming out in first place over the day, but the kill totals put up by both LH Douyi as well as GT Douyi, just absolutely impressive. Don't forget the comfortable Penguin team dropping 22 kills in one game in game number 2. And LH Douyi averaging throughout 3 games, nothing less than 14 kills. Just an absolute pretty much smoke show
throughout those 3 games. Yeah, definitely. You know something interesting? If you look at the Comfortable Penguin team's logo, I've realized it's a penguin holding a pan, but for the longest time, I thought it was a penguin bowling. We can go with that. It's a bowling ball, ladies and gentlemen. Whichever it is. It's very comfortable at bowling. But regardless, let's talk about some of the teams that we kind of expected a little bit more of. Maybe they're going to bring some more flavor here in day numbers 2 and 3. For me, it was BRK team, it was Wildcard, it was C9 that stood out as those teams. What do you think? What are your thoughts? 100% agree. I think Cloud9 is the first team that we look at, winning the North American finals, but coming out finishing no higher than 12th yesterday. We want to see more from them moving forward today. I know they're determined and bound to give us that performance, but they are sitting in 12th place overall right now with the performance of a few kills later on in yesterday's matches. That one, and I'm actually looking forward to see what Gangstars can do, because they start to pick it up there towards the end of day 1. Throughout, I believe it was game number 2, they finished on the last spot, and that's something that they're not used to doing that, but they were able to go ahead and back it up, and they're currently, I believe they're standing on 10th place. Speaking of Gangstars, do you think it's something like not having Beowulf in the squad that hurts them a little bit coming into day 1? Maybe there's an adaptation process for kind of this LAN huge time they have seen stuff that they haven't seen before in North America. So that's mostly like a shocker too. I'm pretty sure they're going to go ahead and adjust, and it is first person today, so it's going to be interesting. Yeah, and then of course Hero team, kind of middle of the pack as well. A team that in Europe looked fantastic. Right. Really got ahead of the pack very early and kept that lead going. So again, another team that I think we expect more of today. Definitely. I think they kind of ran up the table in Europe. I think the level of competition here is just a lot higher. So they're going to have to do a lot better today in order to move up those rankings. All right. Well, it was a great day at number 1, of course. But let's take a look at some of the teams that are coming into day 2 as always. É uma comunidade muito grande, a gente é muito grato por todos eles que estão sempre suportando, sempre dando suporte para nosso trabalho de Pubg Mobile. A gente veio preparado para jogar, vamos buscar o título e que vença o melhor. Galera, fica ligado, BRK chegou! Tamo junto, Brasil! يعني مثل ما قال الليدر حقنا الثانيين الاشخاص الثانيين يعني زي الحمايه لهم فان شاء الله نقدر نفوز اني استخدم العقل قبل المهاره وراح اتقلب عليكم بعقلي. We are GT Gamers! Adaptability, knowing when you get put in a hard situation. In those matches that we did lose to them, because the amount of teams that were, rotating and that were coming around us, fighting us. Have fun, yeah, I would say. Yeah, put our team on the map and put our region on the map. We were representing North America. Gangstars, baby! I think it's a really good thing to do, to have the world play against each other. I mean, it's really exciting, especially from North America. It's exciting to fly out, and it's a good opportunity to show the world what the US has to do, has to offer. To all the other teams competing here at the PUBG Mobile Star Challenge, I got one thing to tell you guys, and that's when Wildcard comes knocking at your door, don't be easy class. All right, and we are back, of course. Always good to hear from Wildcard. Easy claps. I don't even know what that is, to be honest with you. You don't want to know. Yeah. No. I do. I was just feigning ignorance. It's fine. Okay, so beyond that, of course, we are going to be moving on into our first match of the day, which is not part of the main tournament itself. It is our exhibition match. And yesterday we saw some of it. We saw some of Sandhawk, and we were delighted at how people were actually playing things out. What do you guys make of Sandhawk? What do you guys make of what happened yesterday? I love Sandhawk, and I love what happened yesterday. It was fast and furious from
from the start to the end. There was just a small little lull in the middle of the match, but for the most part, we had action right from the drop, right to the final circle. So many people still alive in the final circle. Absolutely love it. As you mentioned, just pretty much non-stop action from the get-go. People just trying to find a gun as soon as possible. If not, just run away, as we saw some there. Yeah, definitely. There can be a limited amount of space in terms of where you want to drop on Sandhawk and things like that, especially when we've got not only 80 players from our PMSC teams, but we've also got an extra 8 players that are going to be playing alongside as well. Throw an extra 2 teams in on an already smaller map. It's going to get crowded. You're going to see a lot of action. So check it out. The map here. It was officially released just a few months ago in June, and it is half the size of Erangel. So that adds for some smaller gameplay, and it's going to be a lot faster paced with more loot, more abundant items, and speedy battles. Definitely more loot and a lot more battles. And they're going to be able to use some of the guns exclusive for Sandhawk, which are the QBC and the QBU, which the QBU actually replaces the Mini 14, and the QBC replaces the Scar L. Indeed it does. We've got the boot camp hot drop right in the middle of the map. This thing is absolutely the #1 spot you're going to see people dropping, followed closely by Paradise Resort, which is a large-scale Asian-style abandoned resort. Imagine that. It's in the northeast side of the island. Easy for players to defend themselves, and tons of loot. One of my favorite places to drop. Paradise, yep. I pretty much have to second that. And then Kampong, a medium-sized town of the north side, which actually kind of don't tend to land on there because just the zone, you might not be able to get that zone, and the circle does seem to move a little bit faster. It does indeed. And Ruins, one of my favorite places to drop as well, tucked into the southwest portion of the map. There's a ton of weapons here and lots of really good cover, a lot of layers involved here. You can hide and jump through the holes in the ceiling. Overall, a really fun map, fast-paced action. Absolutely love the new map from PUBG Mobile. This very interesting thing overall is that we actually yesterday saw a lot of central circles, which, to be fair, when it comes to our PUBG Mobile tournaments, there's been hard shifts, and that's how it's gone. Not as many yesterday, so that actually benefits people on a map like Sandhawk. 100%. There was only a couple games yesterday where I noticed, like, oh, that's a hard shift, that's a hard shift. Yeah. In the qualifiers leading up to this tournament, it was more so tons of hard shifts, a lot of neutral zones, made for a lot of really friendly rotations here this tournament, so we'll see if that continues. Yeah, and the only time we actually saw some hardships were towards the end, when we maybe saw at least just one team, and we actually saw LHW being blessed by that, by being one of the teams. I forgot which game it was, but they were the only team in this zone, and it played to their favor because they ended up second spot on that. Yeah, of course. So as I mentioned before, we have our 80 players from our PMSC teams that are going to be playing, but also we have 8 players that are joining in on our exhibition match as well. And in fact, we can head over to the stage now to meet our 8 players that are going to be joining us for our exhibition. Thank you, Clarice. We're here on stage with all of our streamers that are going to be joining the 2 teams here. On my right is Team Bear. Let's go ahead and introduce some of the streamers we have out here. How about a round of applause for Team Bear? So right here on my right is Ted TV from Korea. Why don't you introduce yourself? Hey, I'm a YouTuber, Korea, and I have like 620 subscribers. So yeah, I feel nervous, but so many people watching us. But so yeah, I feel nervous, but so many people watching us. But I guess my team is gonna win. That's good to hear. Hey yo, what's up guys? Welcome, I'm Russian boy, and now my English very well, but I know I will in tomorrow, короче, нахуй всё. Yosh! Nihon zettai katsu! Go Japan! Yeah! Good! Thank you! I'm Hala from Delialpi Gaming. We're here to represent the Middle East with GG Gamers. Let's do it, boys! Great to hear from Team Bear. Seems like you guys are all pumped up. Let's go ahead and introduce some of the guys from Team Bunny. Here on my left is Mete from Turkey. Why don't you introduce yourself? Yes, my name is Mete. I'm from Turkey. It's great to be here. And I think we will crush them, boys. Yeah! Thank you. Hello everyone, I'm the Sky from China. 很高兴今天接受司仪长邀请来到这里。中国队加油！
So my name is Ketan and I have a YouTube channel named K18 Gaming. And plus I want to tell each and every Indian that is watching this tournament कि भाई होता रहता है इंडिया टीम आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो जीतेगी ही and we are proud of our team and if they're gonna lose or if they're gonna win but they are literally making us proud here and कुछ गलतियां थी RRQ को उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों ने संभाला था जो कल 2 चिकन डिनर जीती थी एंड उन लोगों को बस 1 या 2 गलती थी जो उन लोगों को मे बी कल कुछ चिकन डिनर्स उन लोगों को मे बी मिल सकते थे बट जस्ट चीयर फॉर टीम इंडिया जय हिंद वंदे मातरम السلام عليكم يا جماعة الخير عمر من السعودية صاحب قناة في اليوتيوب حوالي 2 مليون مشترك طبعا أنا قائد الفريق السعودي وبإذن الله التوفيق للفريق السعودي شكرا لكم So there you have it, guys. Team Bear versus Team Bunny. The entertaining match will start right now. Let's get into that match now. K18 Gaming there could talk for India indeed. He stole the show. He was like, well, this is my show now, boys. I loved it. I loved it. Big shout out to Indy and all the people watching from there. I know you guys are super passionate about the game. Really cool words from K18. No, I understood a couple of words there. Namaste, gacho, kaiseho. Okay. Well played. I like it. I like it a lot. So again, we're going to be on Sandhawk. It's a great map. It kind of breaches that middle ground that everybody likes to kind of see when it comes to PUBG Mobile. Especially, you get a lot of action very, very quickly right off the bat, especially if you're going to drop in some of those hot areas. Indeed. Boot camp in particular, I've got my eye on this game. This is going to be super fun to watch. Get those weapons right away. As we saw yesterday, those that didn't land on an assault rifle or some sort of automatic rifle right off the bat were quickly eliminated. When it comes to PUBG Mobile, especially, you get a lot of action very, very quickly right off the bat, especially if you're going to drop in some of those hot areas. Indeed. Boot camp in particular, I've got my eye on this game. This is going to be super fun to watch. Get those weapons right away. As we saw yesterday, those that didn't land on an assault rifle or some sort of automatic rifle right off the bat were quickly eliminated. When it comes to PUBG Mobile, especially, you get a lot of action very, very quickly right off the bat, especially if you're going to drop in some of those hot areas. Indeed. Boot camp in particular, I've got my eye on this game. This is going to be super fun to watch. Get those weapons right away. As we saw yesterday, those that didn't land on an assault rifle or some sort of automatic rifle right off the bat were quickly eliminated. When it comes to PUBG Mobile, especially, you get a lot of action very, very quickly right off the bat, especially if you're going to drop in some of those hot areas. Indeed. Boot camp in particular, I've got my eye on this game. This is going to be super fun to watch. Get those weapons right away. As we saw yesterday, those that didn't land on an assault rifle or some sort of automatic rifle right off the bat were quick.
when it comes to PUBG Mobile, especially you get a lot of action very, very quickly right off the bat, especially if you're going to drop in some of those hot areas. Indeed, boot camp in particular, I've got my eye on this game. This is going to be super fun to watch, get those weapons right away. As we saw yesterday, those that didn't land on an assault rifle or some sort of automatic rifle right off the bat were quickly eliminated. Especially if you're going to drop in some of those hot areas. Indeed, boot camp in particular, I've got my eye on this game. This is going to be super fun to watch, get those weapons right away. As we saw yesterday, those that didn't land on an assault rifle or some sort of automatic. No takut-takut gaming ya, langsung turun di bootcamp aja nih. Asli, buset banyak juga. Oh, banyak Pak, sesuai permintaan lo nih Pak. Iya. Oh, BTR King akhirnya. Gila, my boys. Wih, gila Biketron langsung ketemu orang. Oh, saya buset. Oh, astaga. Langsung diselesaikan ya. Tadi ada orang di balik besi-besi Masih itu. knockdown, masih bisa survive. Masih ada ini, ada Luxi dan Juxi dan juga Natik di sini. Mereka belum dapat senjata sama sekali. Betul banget, dan kita lihat si Natik juga harus apa ya, knockdown di sini. Dua orang sudah knockdown dan kita lihat BTR Kings. Sayang sekali BTR Kings. Oke, mau nggak mau mereka harus kabur. Di sini Luxi dan Juxi. Ya, mendingan mereka cabut aja karena mendingan bertahan gitu ya sampai akhir. Oke, nggak apa-apa. Ini cuma pemanasan guys. Ya, benar banget. Oke, Luxi dan Juxi menuju ke air. Mereka harusnya kabur. Ya, betul. Ke arah seberang dari bootcamp ya. Wih, gila, jago. Ikut berenang dong. Nggak, no takut-takut klub ya. Di sini dan kita lihat ada tim Baraka di sini, masih ada Fusi yang sudah mendapatkan M16. M16, ya. Oke, Baraka kembali sudah. Especially if you're going to drop in some of those hot areas. Indeed, boot camp in particular, I've got my eye on this game. This is going to be super fun to watch, get those weapons right away. As we saw yesterday, those that didn't land on an assault rifle or some sort of automatic rifle right off the bat were quickly eliminated. सामने से टॉटी की टीम जो अंदर की तरफ आते हुए बहुत ही अच्छा सा और मारा क्या एम वॉल के थ्रू वहां पे वॉल के थ्रू क्या है और टॉटी की एक और टीममेट वहां पे डब्ल्यूसी के का जादू वहां पे दिखाते हुए जादू गोल्डन एक 2x 2 टाइम्स स्कोप के साथ में वाह टॉटी की एक और टीममेट बाहर आते हुए और गोली चलाई ओहो M24 निकली ठाक करके शॉट पड़ेगा क्या हेडशॉट देखने मिलेगा क्या हेडशॉट देखने मिलेगा हाँ या ना जल्दी बोलो क्या हमको कार ना M24 का हेडशॉट देखने मिलेगा इस समय पे यहाँ पे 3x QBC के अंदर और टॉटी टीममेट्स पीक आउट पीक इन करते हुए स्ट्रैटेजी बनाते हुए वहाँ पे और भी KWCD की टीम भी जस्ट उनके टॉटी के जस्ट राइट वाली बान में अगर आप देखें तो मौजूद है और टॉटी के पास हील अप करने के लिए कोई भी साधन मौजूद नहीं है। अपने टीममेट को वहाँ पर बुलाते हुए टीममेट टॉटी टीम के टीममेट आपस में रिट्रीट करते हुए फॉल बैक करते हुए कि भाई हम 2 बचे हैं यहाँ पे 2 जगह से मैं गिर गया हूँ तो अब क्या करना चाहिए। बोला भाई मेरे पास आ मेरे पास हील पड़ी है वो ले ले। एक्चुअली अगर बूट कैंप की बात करें बूट कैंप का जो सेंटर का जो बिल्डिंग है बहुत ही खतरनाक पोजीशनिंग ये काइंड ऑफ एक फोर्ट्रेस है। मैं हमेशा कहता हूँ बूट कैंप का सेंटर बिल्डिंग जो है वो एक फोर्ट्रेस है। अगर उस चीज़ को एक टीम ने पकड़ लिया उनको ये पता हो कि उसको किस तरह से संभालना है उसको किस तरह से वहाँ से भागना है तो यार तुम्हें बूट कैंप के अंदर घुसकर कोई नहीं मार सकता बिकॉज वो इतना अच्छा हर जगह से बंद है हर जगह से पोजीशन देखने के लिए है पर यहाँ पर घुस के मारना बहुत फिलहाल टीम जो है वो सामने के बिल्डिंग के अंदर डब्ल्यूसी जो है सामने से उनकी तरफ ध्यान देते हुए एक्चुअली सैंडविच हो चुकी है KWCD की टीम गलत जगह जाकर फंस गई उनके पीछे दूसरी टीम भी थी और गोली मारने की कोशिश मुझे लगता है वहाँ पे लेट हो गए कुछ ज़्यादा देर उन्होंने पीक करने के बाद M16 में 3 स्कोप लगाया भले उसको दिखा नहीं चाहिए कुछ ज़्यादा उन्होंने वेट कर लिया और टारगेट को ढूंढते रह गए वो जिस टारगेट को एक्चुअली वो ढूंढ रहे थे उनकी नजर ऑलरेडी खिड़की में पड़ी हुई थी
डाउन हो सकते थे। यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि यार बंदे बहुत जल्दी डाउन क्यों होते हैं, तो अगर जब आपके पास लेवल 1 गियर्स हैं तो आपका जो डैमेज मिटिगेशन होता है उतना हाई नहीं होता, इसलिए आपको लेवल 2 के वेस्ट और लेवल 2 के हेलमेट या फिर उससे भी हायर आपको डैमेज मिटिगेशन चाहिए। तो सबसे ज़्यादा हायर डैमेज मिटिगेशन आपको लेवल 3 के हेलमेट्स और लेवल 3 के वेस्ट में मिलता है। यहाँ पे हम आज पैराडाइज परदेसी रिसोर्ट में आ गए हम लोग। तो यहाँ पे भी काफ़ी फाइट चलती हुई। जीटी की टीम Pubg काफ़ी प्रेफरेबल चॉइस होती है कई बार सैन हॉक में, क्योंकि आपको ये स्पेशली खेलने मिलने वाली है। तो यार मैं बताऊँ QBC मुझे ज़्यादा मजा आता है। फिलहाल RRQ की टीम यहाँ पर है जीटी के सामने, तो आप दो लीडिंग टीम से टूर्नामेंट के बाद क्या मारा वो, क्या फ्लिक था, देखा क्या फ्लिक था, क्या इंस्टेंट रिएक्शन घुमा और फटाक से दिया। यही एक प्रो प्लेयर की निशानी कि एक बार अपने अंगूठे को घुमाया पर भाई गेम गया सीधे एनिमी के ऊपर। भाई ये चीज यार मतलब देख के मजा आता है। फिलहाल RRQ और GT सामने लगते हुए RRQ का एक बंदा नॉकआउट है, एक बंदा पूरा खत्म हो चुका है। हमको पैराडाइज रिसोर्ट के अंदर हमें दिख रहा है कि एक फ्लेयर गन से एयर ड्रॉप मंगाई गई है। फिलहाल GT के एड जो है वहाँ पर अपने गन को लोड करके RRQ ने रिवाइव कर लिया। फिलहाल रिवाइव हो चुके हैं, लगता है अभी थोड़ी सी सर्विस आगे प्लान कर रहे हैं, तो भी गोलीबारी चल रही है और फिर से नॉकआउट कर दिया होते हैं वहाँ पे। और जीटी की टीम ये यहाँ पे ये है कि कोई भी अपना ग्राउंड मालूम है कि दोनों टीम है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से। और ये बहुत ही, अब यहाँ पे फिर आपको कितना एडवांटेज आप कवर का ले सकते हो वो देखने को मिलता है। और जीटी के तीन बंदे नॉकआउट हो चुके, एक बंदा खड़ा है। जीटी एड अकेला खड़ा है सबको मारने के लिए। फिलहाल RRQ के भी फिलहाल वही कंडीशन है। RRQ के दो लोग हैं, एक नॉकआउट उसको उठा रहे हैं और वो भी जाके अपने टीम को डेफिनेटली उठाएंगे। बट डिफरेंस इज RRQ के पास सिर्फ दो बंदे हैं, एक खड़ा एक नॉक, और जीटी के पास 4 बंदे हैं, एक खड़ा और 3 नॉक। बट आई गेस रिवाइव हो जाएंगे। यस, तो रूइंस के बाजू में हमने देखा कि वहाँ पे एक ड्रॉप ऑलरेडी गिर चुकी है, पर हम लोग उसको कवर नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं। RRQ की टीम फिर से एक फ्लैंकिंग राउट अपनी तलाशती हुई, पर RRQ की टीम को ये बात समझ नहीं हुई, उनके पास हेलमेट है नहीं। बिना हेलमेट के आप एक उड़ते मुर्गे के समान है, काम होता है। बहुत जबरदस्त एक्शन, जैसा कि हम बोल ही रहे थे, लेवल 2 वेस्ट भी बचाकर उन्होंने डैमेज करवा दिया। और अब लास्ट प्लेयर अलाइव है। एक्चुअली D2 इतने बार नॉकआउट हुआ है कि इसका हेलमेट वेस्ट सब कुछ खत्म हो चुका है ऑलरेडी। आई फ्रॉम QBU निकाल कर होगा जीटी की टीम के पास अभी भी एक प्लेयर फुल हेल्थ पे। एड बहुत नजदीक है, एड बहुत नजदीक है, उसने अपनी टीम को खत्म कर दिया। दोनों ओके डैमेज लेते हुए सॉन्ग क्या सॉन्ग है, देखा पीछे एड को दोनों की फुटस्टेप्स दोनों खत्म कर दिया। इतनी पास आप होते हो तो फुटस्टेप्स सुनाई देंगे एक दूसरे की। उसके साथ इस सॉन्ग की गोली पड़ी बट वो मरे नहीं, हेल्थ लो हो चुकी, बट घास में देखकर आराम से निकल जाएंगे। फर्स्ट मारने की कोशिश, एड थोड़ा गलत साइड देख रहा है, अगर एड इस साइड देख ले क्विकली तो फटाक से उसको दिख जाएगा। हाई ग्राउंड का एडवांटेज यही है, खास करके कोई नेता हो तो भी दिख जाता है हाई ग्राउंड के एडवांटेज में। जीटी साइड से थोड़ा सा हल्का सा फ्लैंक करेंगे। फिलहाल बहुत ही ये उसको नहीं करना चाहिए, अगर वो ग्राउंड खास पे आ जाए तो खास ग्राउंड लेवल पे स्पॉट करना बहुत मुश्किल है, बट अगर आप हायर ग्राउंड से स्पॉट करते हो आपको थोड़ा सा ईजी होता है स्पॉट करना। तो 100 यहाँ से दूर के लगाते हुए कि अपनी टीम में इकलौते बंदे गाड़ी ढूंढकर भागने की फिराक में, मुझे लगता है जीटी को वहाँ से थोड़ा सा कन्फ्रंट कर लेना चाहिए था सॉन्ग को मारने के लिए, क्योंकि उनको ऑलरेडी बात पता थी कि वो इकलौता बंदा है वहाँ पर। जीटी की टीम और छोटी की टीम के बीच में के आसपास कितना मुश्किल होता है खास फूस में से एक क्राउच प्लेयर को देखकर मारना होते हुए टोटी के द्वारा। और सब एक के बाद एक, कहीं पे पत्थर, किसी के पास पत्थर की टीले का कवर है, किसी के पास कवर है, वो सब कवर लेते हुए। और फेवरेट जहाँ 2 बर्स्ट में पूरा डाउन किया है, पर फिर भी पीछे से किसी ने फायर लिया, पीछे टोटी की टीम के ऊपर किसी ने पीछे से फायर किया, एक्चुअली सीपीटी की टीम के ऊपर किसी ने पीछे से फायर किया। काफ़ी सारी टीम आसपास मौजूद ग्रेनेड का सहारा लेते हुए, क्योंकि इतनी पास आप होते हो तो आपको पता होता है। क्या स्पॉट किया है भाई, झाड़ के आर पार 12 बंदे को यार। गाइस ये क्या सुंदर ग्राफिक्स लग रहा है, एकदम असली रियलिस्टिक मैप लग रहा है। Once again guys, आप सभी को याद दिलाते ये है दी एक कार मेरे शॉट्स में देखने मिल रहा है फाइनली एक शॉट। तो गाइस once again तुमको याद दिलाते ये है PUBG मोबाइल स्टार चैलेंज ग्लोबल फाइनल्स डे 2 लाइव फ्रॉम दुबई। और ये जो हो रहा है ये है एग्जीबिशन मैच, और आज के सारे मैचेस खेले जाएंगे फर्स्ट पर्सन FPP में। ये मैच भी FPP में खेले जा रही है, इसका मतलब आज कैंपिंग और साथ के बच्चे थोड़े से कम देखने मिलेंगे। बिल्कुल आज
क्राउड मोड का ज़्यादा लोग यूज़ करने वाले, जैसा कि हम देख रहे हैं। थोड़ा सा और एक्टिवेट हो सकते थे, पर फिर भी काफ़ी अच्छे से मैनेज किया। और कवर कितना अच्छा यूज़ करते हुए, कब मुझे पीक ऑफ करना है, कब मुझे पीक डाउन करना है, और क्या 3 बर्स्ट मारे, बंदे को आधे से भी आधा करते हैं पर खुद भी घिरते हुए आगे पीछे से, क्योंकि जब आप कंटिन्यूसली आप फायर करते रहते हो तो आपको ये पता नहीं होता कि पीछे से कौन सी टीम आपकी जो साउंड डायरेक्शन का पता लगा सकती है, मैनेज की आप एक्चुअली फायर कहाँ से कर रहे हो, तो आप खुद भी फ्लैंक हो जाते हो वैसे टाइम पे। और बहुत ही अर्ली स्टेज में लोग इतना धुआंधार गेम में देखने मिल रहा है, क्योंकि ये एग्जीबिशन मैच है। किसने मार नहीं गया था ओवर, बट आई थिंक डाउन हुआ फिलहाल। इवोस और सीपीडी, ये दो टीम्स बूट कैंप के पास वाले पहाड़ पर लड़ते हुए। इवोस का बुश शॉट जो है वो नीचे, सीपीडी को पता है गोली चला इस 3x को, ओ पीछे से मारा था। इवोस के एक्स ने डाउन किया लीसू को, और लीसू को पूरा खत्म कर दिया है, और बुश शॉट गोस डाउन अगेन। सीपीडी के 2 बंदे अलाइव, इवोस के लगता है सिर्फ अकेला बंदा, यप इवोस अर्नी अकेला जिंदा है। इवोस अर्नी इवोस की टीम से, ओके तो सीपी खान और सीपी हान और 17 के बीच में फायर एक्सचेंज होता हुआ डाउन कर दिया गया है। पूरी स्क्वाड का सफाया यहाँ पे, सीपीडी का सफाया हो गया है। इवोस उस पर्टिकुलर रीजन में विजेता बन के उभरी है, और अब जरा जिनको मारा है उनकी लूट तो ले लें, क्या उनके पास बेटर आइटम वहाँ पे लेते हैं। M24 का शॉट देखिए यार, मुझे M24 शॉट देखना है यार। मैं कुछ चाह रहा हूँ, भाई टारगेट मिल गया, हेडशॉट लगना चाहिए, हेडशॉट तो दिखा। अरे एक्चुअली वो कवर में है, पर उसने एग्जैक्टली वहीं पर देखा था यार। दिल खुश हो गया एक सेकंड के लिए हमारा, क्योंकि वो दौड़ के बंदे ने प्रोन किया, तो जब वो दौड़ रहा था तब उसने देख लिया था। जैसे ही उसने प्रोन डाउन किया तो ब्रिज के पीछे चला गया था। अभी भी वो ढूंढ रहे हैं कि एनिमी को यार। एक्चुअली वो सप्रेस M24 है ब्रो, सप्रेस M24 है यार। अगर उसका एक हेडशॉट देखने मिल जाए मजा आ जाएगा। साउंड कितना जबरदस्त आता है सप्रेस्ड M24 स्नाइपर का चुप करके, बहुत ही सूदिंग साउंड होता है। मुझे बहुत मजा आती है M24 जब आप सप्रेस चलाते हो तो। और यहाँ पे हीरो टीम M24 से ज्यादा है AWM। मैं नोटिस किया जब भी आसपास की ऑन चलती है लोग की फड़ी खाती है। फिलहाल गोली पड़ रही है, कहाँ से गोली पड़ रही है हेरो ऑफिशियल को कुछ आइडिया नहीं है, पर गोली पड़ रही है ऊपर जीजी टीम, और इनको भी कहीं से गोली पड़ते हुए आई थिंक हेरो की टीम स्पॉट कर लिया है। स्पॉट करके हेरो की टीम यहाँ से नीचे से मारना शुरू कर चुकी है ऑलरेडी। तो आई होप कि इस बार भी हमें ऐसा ही थोड़ा सा फास्ट पेस गेम प्ले देखने को अगर मिल जाते हैं आज के राउंड, तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जिस तरह की टीम अभी खेल रही है, पर ये बात भी हम लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि सैनहॉक एक 4x4 मैप है। इसके बाद के जितने भी ऑफिशियल राउंड होने वाले हैं वो सारे के सारे आयरिंगडेल में खेले जाने हैं। तो 8x8 का मैप थोड़ा सा ऑब्वियसली स्लो पेस चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है वो 4x4 मैक्स HD स्काई दोनों यहाँ से भाग रहे थे गाड़ी लेकर, पर भाग नहीं सके। क्योंकि साथ में टीममेट का भी मैक्स HD और स्काई दोनों डाउन हो चुके हैं, और सामने बाकी के 2 बंदे आराम से गाड़ी में निकल चुके हैं। स्टीमर की टीम ने इनको डाउन कर दिया है। ओके तो क्यूबी लॉन्ग रेंज करते हुए हेरो के ऊपर फायर चल रहा है। हमने ये बात देखी है, हेरो की टीम पता नहीं ओपन ग्राउंड में क्यों घूम रहे हैं, क्या वो प्रूव करना चाहते हैं। Especially if you're going to drop in some of those hot areas. Indeed, boot camp in particular, I've got. Especially if you're going to drop in some of those hot areas. Indeed, boot camp in particular, I've got my eye on this game. This is going to be super fun to watch. Get those weapons right away. As we saw yesterday, those that didn't land on an assault rifle or some sort of automatic rifle right off the bat were quickly eliminated. Play going on there, which is vital. Good night. समय में सैनहॉक में, क्योंकि अगर पहले दौर के जो सर्कल्स होते हैं वो थोड़ा सा जल्दी मूव करते हैं, डैमेज कम करते हैं, और जब जैसे ही आप लास्ट के सर्कल्स में पहुंचते हैं तो सर्कल्स धीरे मूव करते हैं पर डैमेज ज़्यादा करते हैं। तो थोड़ा सा सैनहॉक का जो मैकेनिक्स
जो गेम मैकेनिक्स लास्ट में सर्कल का काम में आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट एंगल और मिरामार के कंपेयर में जीटी की टीम ऑलरेडी सर्कल के अंदर पहुंचती हुई पीछे हीरो की टीम आगे बढ़कर उनको फॉलो अप करती हुई देखना होगा कि अकेले ही बंदे हैं, उनका एक टीममेट ऑलरेडी नॉकड आउट है तो उसको रिवाइव करने के लिए चांस लेने नहीं वाले क्योंकि उनको आगे बढ़ना है। और जी के बंदे भी ऑलरेडी एक बंदा डाउन है वहाँ पे भी। इल्यूमिनेट और जीटी की टीम जस्ट आमने सामने देखना होगा कि दोनों ने एक दूसरे को देखा है या नहीं। यार गोल्डी मेरे को भूख लगा है, मेरे को भूख लग गया है भाई, तो खाना ले आ हमारे लिए यार। अरे तुम गोली मत चलाओ, हम खाना ला। अरे देख मार रहा खाने के लिए भाई, उसको नहीं खाऊंगा मैं उसको नहीं खाऊंगा। तो यार ये जीटी की टीम यहाँ पर फिलहाल सामने को मारने को। ओह क्या बात है, क्या बात है, आहा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुंदर 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 सुंदर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो इल्यूमिनेट कल की गेम जीती थी बाय द वे, क्या था जीतेगी इल्यूमिनेट जिस तरह से वो अभी हमको इस बार उनका थोड़ा सा कोई ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से उनका गेम प्ले हमें देखने को मिला नहीं है और उनकी स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिली नहीं है। पर कल के अगर गेम प्ले हम देखें तो वो भी काफी अच्छे कंटेंडर और पॉइंट्स टैली में वो भी आज ऊपर आ सकते हैं, किल्स टैली में ठीक है वो भी ऊपर आ सकते हैं। ये सब तो ठीक है, पर हमारी इंडिया की टीम किधर, हमारी इंडिया की टीम किधर मर गई? किधर है? हमें दर्शन नहीं हुआ। कोटिया से बात करता हूं, कोटिया से पता लगाओ। ओ भाई एफपीपी में बंदे लेटे हुए हैं, क्या बात कर रहा है ये गोटिया? ओह नो, टेरर किधर है? एफपीपी में बंदे लेटे हुए हैं भाई, और लेटे हुए बंदे ने खड़े हुए बंदे को डाउन कर दिया है। मर गया? डाउन बिल्कुल, टेरर मर गया बोलता है गोटिया, बोलता है टेरर मर गया। ओके तो हम आगे बढ़ते हुए और इल्यूमिनेट की टीम ऐसे ही आगे बढ़ रही है और जीजी की टीम का बंदा और अंदर घुस चुका है, पूरब के अंदर पहुंच चुका है यहाँ पे। और गैंगस्टार की टीम भी फाइट लेती हुई वहाँ पे टीम 22 से। और ये बात अच्छी कि लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट के लिए लोग ज़्यादातर 3x स्कोप प्रेफर कर रहे हैं अदर देन 2x, क्योंकि 2x अगर आप चला रहे हैं स्क्रीन देखने मिल जाती तो सब कुछ भूल जाता हूँ मैं। एक ऑफ स्कोप के साथ में अगर आप इसको टैप फायर करो सिंगल फायर मोड पे प्रेशर लगा करके, तो क्या एक्यूरेट वेपन है। और यहाँ पर ये दूसरी स्ट्रीमर की टीम मुझे देखकर लग रही है यहाँ पर गैंगस्टार्स वालों पर गोली चलाते हैं 4x ऑन QBZ, बहुत ही बढ़िया गन QBZ। वंस अगेन मेरा फेवरेट तो QBZ है बिना स्कोप के साथ। और ये गैंगस्टार्स के बंदों को देख कर मार रहा है साला, तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा मैं, मुंडे दिखाओ तुम्हारा देखा देख भाई भाई सिंगल मार भाई सिंगल पे कर ले मेरे भाई। अरे बाबा ओ सोबलिन को सिंगल पे करो धीरे काक। अरे बंधु झाड़ में क्यों मार रहा है? अरे तू उसको क्या, इसको आराम करने बोल। हाँ देखा, ये हुई ना बात। धीरे धीरे आराम से सिंगल पे करके मारो यार। भरोसा कितना है उसको अपने आप पे? बोले पेड़ में लगी तो पेड़ में भी लगने दो, पेड़ में ही मारूंगा मैं। और गैंगस्टर की टीम है उनके पास काफ़ी अच्छा कवर और अपने टीममेट को बचाने के लिए स्मोक आउट किया है, जो कि सबसे पहला ऑब्वियस स्टेप। अगर आपको अपने टीममेट को बचाना है, रिवाइव करना है, तो डेफिनेटली स्मोक आउट करो ताकि एनिमी जो आपको देख भी रहा है उसको कोई विजन ना मिले आपको मारने का। और क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आसपास कार है, टीले हैं, पत्थर हैं, स्प्रे था यार 4 टाइम स्कोप के साथ में यूएमपी का जबरदस्त स्प्रे और बंदे को पूरा डाउन किया। तुझे पता है मैंने इस बंदे का नाम गैंग प्रिया पढ़ा भी। मैं बोल रहा था गैंग प्रिया बंदे पर यार ये बात तो है, उसका एम बहुत ही जबरदस्त यूएमपी के साथ क्या एक फ्लिक में एनिमी के ऊपर जा रहा है। बहुत ये चीज मोबाइल में कर पाने के लिए यार ऐसी प्रैक्टिस चाहिए कि जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, राइट? तो यार फिलहाल 22 गाइस अलाइव, 8 टीम्स यहाँ पर सर्कल नंबर 5 क्लोज हो रहा है। मैच शुरू होकर 18 मिनट्स हो चुका है। देखना ये है कौन यहाँ पर सर्कल के अंदर पहले पहुंच जाएंगे। ऑलमोस्ट सभी बंदे राउंड एकदम सर्कल के कॉर्नर साथ चल रहे हैं और करिश्मा ने ILM की टीम एक बंदे को स्पॉट कर लिया है, बट फिलहाल उसको मारना पसंद नहीं करेंगे। बहुत ही दूर से गैंगस्टर वाले गाड़ी के अंदर से गोली चला रहे, एक तो गाड़ी का छत पे खिंचाड़ होकर गोली मार रहा है। ये देखो गैंग का एंग्री आराम से ये क्या कर रहा है? ये क्या भाई तू क्या सोच रहा है? हेलो पगला गया लौंडा। और आपको देख सकता है लक्सी यहाँ पर कैंप। भाई लक्सी स्टार्टिंग में उनके 2 बंदे मर गए थे और वो अकेला बंदा अभी तक आकर दूसरे एक झोपड़े में छुपकर बैठा हुआ है लक्सी साइड में। यहाँ पर बॉस जबरदस्त अकेला बंदा बचा हुआ था यार, टीम में अंदर घुसा, बैंडेज मार के। हाँ उनके पास बड़ी जो फर्स्ट एड थी ना वो थी ना मेडकिट थी, छोटी बैंडेज मार के सर्कल के अंदर घुसते हुए। और इल्यूमिनेट की टीम को जरा भी हवा नहीं लगी कि कोई बंदा एक्चुअली ब्लू सर्कल से अंदर घुस के भी उनको मार सकता है।
रैंडम कहीं पे भी फायर करते हुए उनको एक्चुअली पता ही नहीं था कि बंदे हैं क्या। उन्होंने सोचा कि कोई बंदा ऐसे ही घास में लेटा होगा पर और कैरिज्मा खत्म यहाँ पर। इसी के साथ आप देख सकते हो ILM वंस अगेन इल्यूमिनेट कल के एग्जीबिशन मैच की विनर्स थी। अगर इस बार भी जीत जाए तो इल्यूमिनेट दोनों एग्जीबिशन मैच डे 1 और डे 2 के जीत जाएगी। पर यहाँ पर जीजी वाले, जीजी का क्या नाम है, इसका क्या नाम है, सलेवन यहाँ पर फर्स्ट एड फिलहाल मारेंगे और मार के ILM को थर्ड पर्सन, इट्स अ फर्स्ट पर्सन गेम, थर्ड पर्सन गेम तो है नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्यों पिक कर रहे, नहीं पिक कर रहे। बाय द वे ये आप लोग को थर्ड पर्सन में दिख रहा है बट सारे बंदे खेल रहे हैं फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में, क्योंकि ये स्पेक्टेटर मोड में आप देखा सकते हो। और एक बंदे को नॉकआउट कर दिया यहाँ पर इको को फिलहाल, और नॉकआउट के पूरा ऐसे बर्स्ट जब देखने मिलते हैं तो बहुत ही मजा आती है। और बहुत ही कामली इन्होंने वसैल एवन ने, जीजी टीम के मेंबर ने बहुत ही अच्छे से अपने आप को ढाला उस सिचुएशन में। अकेले होते हुए भी थोड़ा सा किस्मत का उन्होंने साथ मिला होगा। एलिमिनेट टीम थोड़ी सी अनअवेयर और सफाया होता हुआ एलिमिनेट टीम का वहाँ पे वसैले अकेले बचे हुए हैं। पर बहुत ही छोटा सा सारी टीम फायर करते हुए कोई पीक लक्ष्य किधर है, लक्ष्य किधर है, तो भाई स्कोप मेरे ख्याल से स्कोप उनको पसंद नहीं सर्कल के ऐसे लास्ट मोमेंट में। स्कोप में क्या होता है, क्या रखा है स्कोप में, व्हाट इज कीप्ड इन द स्कोप्स। और यहाँ पर लूसीफर भाई यहाँ पर थोड़ा यहाँ लेफ्ट राइट पिक करने की कोशिश, बट WC की पूरी टीम यहाँ पर जिंदा है फिलहाल। इस मैच में सिर्फ दो ही टीम है, जापान टीम और WC की टीम। दोनों टीम के चारों बंदे अलाइव, सभी बंदे सर्कल के सर्कल नंबर 6 फिलहाल यहाँ पर क्लोज हो रहा है। दोनों बंदे अक्रॉस एक दूसरे के आमने सामने अगर देखी जाए तो जापान की टीम जो है उनकी टीम के लोगों का थोड़ा सा हेल्थ कम है कंपेयर टू WC वालों के पास फुल हेल्थ है। यहाँ पर सर्कल, अगला सर्कल बन चुका है, सर्कल नंबर 7 पूरा फेवर WC टीम को। इसका मतलब जापान को भागना पड़ेगा ऑलरेडी पीक आउट करके उन्होंने चारों एनिमीज को जब देख ही लिया था तो शायद उनको पूरा 360 रोल मार रहे हैं, या फिर एनिमी को स्कैन करते हुए उनको शायद जब एनिमी की लोकेशन पता नहीं थी इसीलिए उन्होंने कन्फ्रंट नहीं किया। पर प्राइमरीली जब वो पीक आउट करके फायर कर रहे थे टीम के ऊपर तो उसी दौरान हमने देखा जबरदस्त उन्होंने टैप फायर किया। 3 बंदों की हेल्थ सुपर लो है और इतनी देर तक हेल्थ लो रहने का मतलब है कि जापान टीम के पास हेल्थ का नामो निशान नहीं है। अदरवाइज वो अभी तक हेल्थ को ओ भाई बंदा हुआ डाउन, एक बंदे की फुल हेल्थ। और देखते हैं कितनी देर कितना टाइम उनको लगता है अपने टीममेट्स को। एक स्क्वाई, क्या रिकॉइल कंट्रोल चल रहा है। बाहर निकलोगे लो हेल्थ में तो फिर एक गोली भी अपना कमाल दिखा जाती है। और एक बंदा एक्चुअली घुस के मारने की कोशिश, नानटू यहाँ पर दूर से नानाटू गोली मारने की कोशिश, एक गोली मारकर घास पे लेटे, पीछे से गोली पड़ी और मैच इज ओवर। विनर चिकन डिनर WC। बहुत बढ़िया खेल, ये देखो हम जीत गए किसी भी क्या बात है नाचो, हम जीतेंगे के साथ। आज मैं नाचेगा रे, वो देखो बंदा बोल रहा है, वो देखो मैं नाचेगा, हाँ मैं नाचेगा, तुमने नाचेगा। टीम का नाम वाइल्ड कार्ड, बाय द वे WC टीम का नाम वाइल्ड कार्ड है। कोई वेस्टर्न कमोड मत फेंकना, टीम का नाम वाइल्ड कार्ड, ठीक है। तो ये है सुंदर सा वो स्टेडियम। टीम बेयर जीत गई आज की मैच, मतलब टीम बेयर वालों को सारे बंदों को मिलेंगे सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 और बहुत ही सुंदर गेम के अंदर की चमड़िया गेम की। तो यार कुछ ही क्षणों में मैच नंबर 1 शुरू होने वाला है। ऑफिशियल PUBG मोबाइल स्टार चैलेंज ग्लोबल फाइनल्स डे नंबर 2। और अभी फिलहाल लीड पर है, कौन है लीड पर, कौन है? अभी तो एग्जीबिशन मैच जीता है WC। नहीं, मैंने आपको बताया था कौन है, आपको बताना